Namaskar, good evening. You're watching Breaking Ground and I am Swati Joshi, wishing all the viewers a very happy Independence Day. Let's now tell you what is going to be our top focus at 5 in this broadcast. We'll talk about the politics over Rahul Gandhi, the leader of opposition in Lok Sabha, and Mallikarjun Kharge, the Congress chief and leader of opposition in Rajya Sabha, skipping the Independence Day event. Now, Bharatiya Janata Party has taken a jibe at Rahul Gandhi, saying this is nothing but Pak Prem. The Congress has hit back at the BJP, alleging that BJP is no one to issue certificates of patriotism. Next, in Deep Dive, we'll talk about the Prime Minister's assurance, the big promise of Suraksha Chakra, and we'll decode what that dream means. Later in the broadcast, in Janata's Take, we'll tell you how the Prime Minister has made a bold statement on the changing demography. The message that has come from the Red Fort is that India is not going to tolerate intruders and that there's no space for intruders. Let's now get you all the stories in detail. Even as India is celebrating its 79th Independence Day, politics around Rahul Gandhi is overshadowing the occasion. When Prime Minister Narendra Modi was delivering his longest ever I-Day speech, there was a notable absentee at Red Fort. It was none other than Rahul Gandhi. The Lok Sabha leader of opposition was missing from the celebrations, even though he attended the I-Day event at Indira Bhavan earlier in the day. The BJP has lashed out at the Congress MP, calling him lover of Pakistan and asking if this is how it shows Samman for Samvidhan and Sena. Now, the Congress party has hit back at the BJP, saying Rahul Gandhi does not need a certificate of nationalism or patriotism from the Bharatiya Janata Party. ये देश का ये राष्ट्रीय पर्व है, ये किसी व्यक्ति का जन्म दिवस नहीं है, ये किसी एक पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, परंतु आज कांग्रेस ने साबित कर दिया कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस या इटालियन नेशनल कांग्रेस है। राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने आज स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम का जो राष्ट्रीय कार्यक्रम रेड फोर्ट पर लाल किले पर होता है, उसका बहिष्कार कर दिया। इसका मतलब साफ है, मोदी विरोध में उतरते उतरते देश विरोध में उतरना, तो सेना का विरोध करना, ये कांग्रेस के लिए आम बात बन चुकी है। संविधान का अपमान, देश के इतने बड़े ऑपरेशन सिंदूर और का अपमान। I don't need or nobody needs BJP certificate. The BJP is an anti-Indian party. The BJP should stop talking and giving certificates of patriotism to anybody. Indian National Congress fought the war of India's independence. The fact that India celebrates its 79th Independence Day and the fact that Mr. Modi has a chance to address this nation from the ramparts of the Red Fort is because we fought that battle very hard. We made sacrifices through our blood, our sweat and our lives. Name one Karyakarta of the RSS who died for India's independence. Not one. So while the Congress party has remained mum on why neither Rahul nor the Rajya Sabha LOP Mallikarjun Kharge skipped the Red Fort celebrations, many are pointing out to what happened last year, the controversy that broke out last year. Reports suggest that Congress and Rahul were unhappy with the government overseat arrangement during 2024 Independence Day celebrations. Protocol states that Rahul as LOP is designated to sit in the front row, but last year he was made to sit in the second last row to accommodate Olympic medalists. Let's open up the debate. Let's go across to our guests. We have Radhika Kheda, national spokesperson of the BJP, and Advocate Kaushal Mungta, leader Congress. Good evening to both of you and a very happy Independence Day. Let me first go across to Mr. Mungta. Mr. Mungta, BJP का ये कहना है कि ये तो पाक प्रेम है. बीजेपी इस पर भी सवाल उठा रही है कि एलओपी को होना चाहिए था इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन में. क्यों स्किप किया इवेंट, क्यों नदारद रहे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि भाजपा को जब कोई मुद्दा नहीं मिलता, पूरे देश के अंदर बुरा हाल आज हर तरह से, हर तरीके से इकोनॉमी से लेकर के देश की पूरी स्थिति खराब है और इनको राहुल गांधी जी का खौफ है। रही बात राहुल जी के वहां न आने की, ये कोई पाक प्रेम इस प्रकार की बातें करना, बीजेपी का पहले से ये कार्यक्रम रहता है कि पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, यही इनके पास मुद्दे और कोई मुद्दा नहीं है। पिछली बार जब राहुल गांधी जी लाल किला पर गए थे, 5वीं पंक्ति में राहुल गांधी जी को बिठाया गया, कोई डेकोरम नहीं। ये लोकतंत्र को जो स्थापित जो हमारे प्रतिमान है, उनको खत्म करने का इनकी तो तानाशाही जो नीति है भाजपा की, उसको लगातार
बहिष्कार करते हैं। उसके अलावा राहुल गांधी जी ने और खड़गे जी ने सुबह अपने जो कार्यालय में तिरंगा फहराया और हमको भाजपा से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों का ना आजादी की लड़ाई में कोई योगदान, जिन लोगों ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन को बहिष्कार किया, हर कोई अपने अपने कार्यालय में नेतागण झंडा फहराते हैं, तिरंगा फहराते हैं, लेकिन ये तो रेड फोर्ट में लाल किले से जो इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन हो रहा था वहां न जाने की कोई वजह नहीं है। दूसरी बात, क्या आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को ये बुरा लगा था कि पिछली बार फ्रंट रो की जगह फ्रंट रो में सबसे पीछे वाली सीट राहुल गांधी को दे दी थी, आगे नहीं बैठाया था, इस बात से नाराजगी है? अच्छा होता कि आपका चैनल और राष्ट्रीय चैनल एक डिबेट ये भी करवाते कि पिछली बार क्यों लोकतंत्र की हत्या की गई, क्यों एलओपी को वो मान सम्मान नहीं दिया गया, जो कि लोकतंत्र के अंदर एक बहुत बड़ा पद है। पहला बात। दूसरी बात, मान लीजिए कि अगर नहीं भी रूठे हैं तब भी क्या भाजपा सर्टिफिकेट बांटती कि जो लोग लाल किला नहीं आए हैं वो लोग जो पाकिस्तान प्रेमी है, वो लोग जो देश के अंदर पहलगाम को नहीं रोक पा रहे, पहलगाम से हादसे नहीं रोक पा रहे, वो लोग जो आईएसआई को जो है हमारे जो है पंजाब के अंदर बुलाते हैं, वो भाजपा के लोग जिनके आरएसएस के एक कार्यकर्ता का कोई नाम बता दीजिए जिस देश की शहादत दी हो। इनका काम सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान देश को बांटना। अरे राहुल गांधी वो नाराजगी इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए, कोई भी नाराजगी इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि इंडिपेंडेंस डे का इवेंट ही आप स्किप कर जाए। बिल्कुल ये बात नहीं है। Okay, let me bring in Radhika Kheda. Radhika Kheda, the Congress and of course Mr. Mungta also say that the Congress party fought the freedom struggle. I mean, Congress party को आपके सर्टिफिकेट की और राहुल गांधी को आपके सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। Can you unmute yourself, Radhika? Sorry. Yes, go ahead. Namaskar, and wish everyone a very happy Independence Day. Oh no, we are not giving any certificate to the Congress. The Congress has been given a certificate by the people of the nation for the past 11 years. And for the past 11 years, Rahul Gandhi remains in opposition, and for the first 2 terms, so at least he was not even given, Congress was not even given the title of leader of opposition. Why? Because they failed to get that many votes. And it is not us who calls him and who calls him an anti-national. Is it not anti-national when Rahul Gandhi is present at every time that India needs to be criticized outside? He goes to London, he goes to US, he goes across the world on George Soros funds and goes and criticizes the country. कभी कहते हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में, कभी कहते हैं माइनॉरिटी खतरे में, कभी अमेरिका के वहां पे जाके कहते हैं कि यहाँ पे आके मदद करिए, गेट इन्वॉल्व टू सेव द डेमोक्रेसी, अदरवाइज अमेरिकन state will be in trouble. And let alone that, Rahul Gandhi in January this year, from the same Indira Bhavan where he was hoisting the flag today, has gone on to say that his fight is not only with RSS and BJP, it is against the Indian state. So Rahul Gandhi in his own words has categorically said that he is against India's Loktantra, India's Tantra and India's as a state. Bhajpa. We don't say that. I did not speak Bhajpa. Quiet. Now today, मैं फिर हिंदी में बोल देती हूँ क्योंकि इनको समझ नहीं आएगा, तो इनके लिए मैं बता देती हूँ कि आज अंग्रेजों की औलाद तो आप लोग हैं, आपको अंग्रेजी समझ आती है, हमें हिंदी समझ आती है क्योंकि राष्ट्रीय भाषा है। कोई जरूरत नहीं है। आप भाषा के नाम पर बात नहीं वाले लोग हैं। मुंगता जी आप सिखाएंगे मुझे अंग्रेजी? मुंगता जी, अलाउ हर टू फिनिश, आई विल कम बैक टू यू। मैं आऊंगी आपके पास, अलाउ हर टू फिनिश। आज जब लाल किले पे, and see the entitlement कि front row नहीं मिला. What has Rahul Gandhi done to get the front row? Even though he is the leader of opposition, he still gets that seat. So is he more important than those people who have contributed to the country and the heroes of the country? Having said that, today Rahul Gandhi was not abroad. Today Rahul Gandhi was not sick. He was there at Indira Bhavan, right? The same Indira Bhavan jahan se kaha tha, my fight is against the nation. And who was standing beside him? Jagdish Titler. The man accused of the 1984 anti-Sikh massacre. And who had saved that man after that? It was Rahul Gandhi's own father who said कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो ऐसी चीज हो जाती है. He had covered the entire drama, the entire killings of done by Jagdish Titler and Sajjan Kumar. So Rahul Gandhi on Independence Day chose to stand at Indira Bhavan, the same Indira Bhavan named after Indira Gandhi जिन्होंने emergency देश में लगाई, the same Indira Bhavan जहां से उन्होंने हुंकार भरी राहुल गांधी ने इस जनवरी में कि मेरी लड़ाई इंडियन स्टेट से है, और साथ में उनके खड़ा हुआ था लेकिन राहुल गांधी ऐसे कई लोग हैं जो नहीं शामिल हो पाए इंडिपेंडेंस डे इवेंट में, कई पॉलिटिशियंस, तो क्या उन सभी को एंटी-नेशनल का टैग लगा दिया जाएगा? He is not koi aise log. He is the leader of the opposition. When you are getting that post and you are sitting over there, he is the entire leader of the entire Thug Bandhan of India Alliance, and he was not there. And like I said, either he was sick or he was traveling. No, he was there. He was just a few kilometers away from there. He was at Indira Bhavan. Like I said, Indira Bhavan, jahan se bola meri ladai Indian state se hai. Okay. So that is national or Indian and anti-national. He was standing next to Sajjan Kumar, who slaughtered hundreds of Sikhs.
Was that national or anti-national? Okay. And what was he doing over there? We all saw he was, I think, in some sort of a drug state or something. He was standing like this. Those videos are there for everyone to see. And it is not us who saying it. The common man is saying it, which is exactly why. If he was so national, the people of India would have voted for him. And 99 people wouldn't be celebrating कि हम सरकार बना लिए. So the point is, when one more point, just 30 seconds. Okay. When Trump chooses to say that 6 जहाज गिरे हैं, this is the same Rahul Gandhi who comes in parliament and says हमारे Air Force वालों के हाथ बांध दिए हैं, हमारे जहाज गिर गए. But when the Air Force chief comes out and says that it is India who downed those 6 jets and India was never हमारे हाथ नहीं बांधे गए, Rahul Gandhi kept mum. That is anti-national. Okay, मुमता जी. सबसे पहली बात तो है कि शी सिंग दैट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड क्या इंग्लिश में बोल रही है क्या नहीं बोल रहे हैं. पहले तो ये भाषा के आधार पर बांटने का काम इनका. सुन लीजिए, ये सिर्फ और सिर्फ बांटने वाले लोग हैं. सुन लीजिए. पहले ही जाति के नाम पर बांटते, फिर धर्म के नाम पर बांटते, फिर भाषा के नाम पर बांटते. अरे शांत हो जाइए, बकवास मत कीजिए. मिस्टर मुमताज टर्न, प्लीज गो अहेड. आपने इन्हें 4 मिनट बोलने दिए, मुझे भी बोलने दीजिएगा. पहले आप ही बोल रहे थे, पर बोलिए. इन्होंने कहा कि जो है राहुल गांधी को वहां होना चाहिए था. ये भाजपा डिसाइड नहीं करेगी हमको कहाँ होना है कहाँ नहीं होना है. अब दूसरी बात सुन लीजिए, वो भाजपा जो बिना बुलाए बिरयानी खाने इनका प्रधानमंत्री पाकिस्तान चला जाता है. मनमोहन सिंह 10 साल रहे, कभी पाकिस्तान नहीं गए बिना बुलाए. और सुन लीजिए, आप वो लोग हो, अमेरिका हम पर जो है सरेआम हमारी बेइज्जती कर रहा है, प्रतिदिन पर बेइज्जती कर रहा है. नेपाल आज हमसे रूठा हुआ है, श्रीलंका हमको आंख दिखाता है. हमको सारे हमारी जो वैश्विक जो हमारी नीति है, हमारी जो विदेश नीति, सुन लीजिए, उसको संभालिए. जिसके लिए आपको रखा गया है, इसके लिए कोई और दिन आप मुझे बोलने देंगे. क्रिटिसिज्म के लिए इसका क्या कनेक्शन? आप मुझे बोलने देंगे. इसका राहुल गांधी के इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन को स्किप करने से क्या कनेक्शन? तो आपने जब भाजपा की प्रवक्ता बोल रही थी, उन्होंने कितनी पॉइंट बोले हैं? मैंने उनसे पूछा कि क्या हर कोई जो वहाँ पर नहीं मौजूद था वो एंटी नेशनल है? वो सवाल आपने नहीं सुना. सुन लीजिए, मैंने पूछा भाजपा की प्रवक्ता से कि ऐसे कई पॉलिटिशियंस हैं जो वहाँ पर मौजूद नहीं थे, क्या वो सभी एंटी नेशनल है? वो आपको सवाल नहीं सुनाई दिया. जब आप भाजपा के प्रोपेगेंडा, भाषा के बांटना, देश को हिंदू मुसलमान पर बांटना, देश को पाकिस्तान और हिंदू चीन पर बांटना, उस वक्त आप कुछ नहीं बोलते. सुन लीजिए मेरी बात. पाकिस्तान और चीन पर बांटना क्या बात आप कर सुन रहे हैं? लीजिए, शांत रहिए. राहुल आप ऐसे एक तरफा एलिगेशंस लगाते जाएंगे और कोई आपको सुनता जाएगा, ऐसा नहीं होगा. एलिगेशन भाजपा का प्रवक्ता लगा रहा है. मेरी हमने नहीं लगाया एलिगेशन. हम सिर्फ ये कह रहे हैं, भाजपा हमको ना सिखाएं कि हम देशभक्त है कि नहीं है. हमारे राहुल गांधी वो व्यक्ति है जिनके परिवार में. अरे बकवास बंद कीजिए मैडम, आप बोल चुके हैं. सुन लीजिए. नहीं, इस स्तर पे बकवास जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है मुमता जी. राहुल गांधी को देशभक्त है कि नहीं है, वो उनका पूरा परिवार जो देश के लिए शहीद हुआ है, जिन्होंने देश के लिए अपना खून दिया है, जिन्होंने जिनके नाम, सुन लीजिए, नेहरू जी ने सारी संपत्ति देश के नाम कर दी, इंदिरा गांधी जी ने देश के नाम अपनी जान दी है, राजीव गांधी जी ने अपनी जान दी है. वो लोग अगर आज उनके देशभक्त होने पर भी अगर आज सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं तो ये देश का दुर्भाग्य है. सारी बातों की एक बात मुमता जी, कांग्रेस पार्टी इस पर क्यों साइलेंट है? ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी ने इस पर क्यों कुछ नहीं कहा? इवेंट को स्किप करने के पीछे की क्या वजह थी? नाराजगी की पिछली बार पीछे बैठाया गया था, क्या वजह? क्योंकि जिस कार्यक्रम में राहुल गांधी शामिल हुए वो इंडिपेंडेंस डे के कार्यक्रम के बाद भी हो सकता था. जैसे मैंने कहा, पॉलिटिशियंस करते हैं अपने अपने कार्यालय में. कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता ने क्लियर की ये सारी बातें कि पहली बात, लोकतंत्र की हत्या भाजपा कर रही है. पिछली बार जो उन्होंने किया वो सीधा जो है एक प्रकार से आप जैसे कहते हैं कि बदले की भावना वाला काम था. इस बार हम लोग चुने हुए लोग हैं, 24 करोड़ लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया है. लेकिन क्या आपका अपना अहम और नाराजगी इतनी बड़ी हो गई है कि इंडिपेंडेंस डे के इवेंट को स्किप कर जाएंगे? और पिछली बार ये कहा गया था कि ओलंपिक मेडलिस्ट जो हैं उनको आगे बैठाया गया था, इस वजह से ओलंपिक मेडलिस्ट को, देश के वीर सैनिकों को सबको सम्मान मिले. लेकिन विपक्ष के नेता का जो दर्जा है, कांग्रेस से सीखिए. जब नरसिम्हा राव ने अटल बिहारी वाजपेयी को जेनेवा कन्वेंशन में भेजा था. अरे नरसिम्हा राव जी की बात आप मत कीजिए, और बातें निकल आएंगी. सुन लीजिए, बातें नहीं निकलेगी. किस तरह से मरणोपरांत आप लोगों ने सम्मान भी नहीं दिया. अरे मैडम, मैं कांग्रेस के कार्यालय में घुसने तक नहीं दिया. कांग्रेस का इंटरनल मैटर है, राव जी की बात मत कीजिए और बातें निकल आएंगी. आप केवल इंडिपेंडेंस डे के मुद्दे पर रहिए. आप कांग्रेस के प्रवक्ता के मुंह में अपनी बात क्यों डालना चाहते हैं? मुझे समझाए पहले आप. जब मैं कह रहा हूं विपक्ष का सम्मान क्या होता है, जब नरसिम्हा राव जी अटल बिहारी वाजपेयी जी को जेनेवा भेजते हैं, वो विपक्ष का सम्मान होता है. आज जो है तानाशाह है मोदी जी, अकेले वही भाषण देंगे, वही बैठेंगे, वही खाएंगे, वही सब कुछ करेंगे. तो सीधी बात यह है कि कांग्रेस
को भाजपा से लोकतंत्र का और देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं लेना। उसके बावजूद राहुल गांधी जाते हैं और उनको झप्पी, उसके बावजूद राहुल गांधी जाकर के उनको झप्पी देने लग जाते हैं। राधिका खेड़ा वांट्स टू कमेंट। स्वाति, दो बातें मैं बहुत क्लियर कर दूं इस आदमी को। पहली बात, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी संपत्ति आप इस आदमी कह रहे हैं, आप इस जमीन से बात करें, हमें कोई आप यहाँ पे कोई बात नहीं करनी है। डाउन कर दीजिए क्योंकि ये बदतमीज आदमी है। नहीं, ऐसे एक दूसरे पर नहीं, एक दूसरे पर इस तरह की टिप्पणी ना करें प्लीज प्लीज। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी संपत्ति का 1 रुपया भी नहीं दिया था। जवाहरलाल नेहरू के पास और मोतीलाल नेहरू के पास अंग्रेजों के जमाने से वकील होने के नाते इतना पैसा था कि जवाहरलाल नेहरू के आरएसएस ने बनाया था, आपने बनाया था मेरी बहन को वकील। मैं इनके बीच में नहीं बोली स्वाति में। ओके मुमता जी, अलाउ हर टू फिनिश, आई विल कम बैक टू यू। उनको अपनी बात करने दीजिए। जवाहरलाल नेहरू के पास इतना पैसा था और ये ऑन रिकॉर्ड कांग्रेस पार्टी अपनी ट्रेनिंग में सिखाती है कि मोतीलाल नेहरू बहुत बड़े वकील थे अंग्रेजों में जमाने में। अब ये नहीं हो रहा है मैडम पर्सनल, कि जो ये नहीं है हमारे मुद्दे से भटकना। कैम्ब्रिज में पढ़ रहे थे। स्वाति, ये क्या है? मिस्टर मुंगटा, 1 सेकंड, अलाउ हर टू फिनिश, अलाउ हर टू फिनिश। आपने भी नेहरू जब कैम्ब्रिज में पढ़ते थे तो कैम्ब्रिज के 2 द्वार थे स्वाति। दोनों द्वार पे एक एक रोल्स रॉयस खड़ी रहती थी कि नेहरू जी कौन से गेट से निकल आए। और आप वहां पर पियोन थे। देखिए क्या बोल रहे हैं, आपको सारी जानकारी है। आई विल लीव दिस डिबेट, आई एम सॉरी। मुंगटा जी 1 सेकंड, अलाउ हर टू फिनिश, आई कम बैक टू फॉर रिबटल। ये जवाहरलाल नेहरू पर बोला जा रहा है, नहीं आप भी नरसिम्हा राव तक चले गए थे, उनको अपनी बात करने आपको काउंटर करने का मौका मिलेगा। सॉरी, आई एम लीविंग द डिबेट, आई कैन नॉट डिबेट विद सच derivation people. Okay, I'm anyways out of time, but Mumta ji, you need to have some patience. Tyrant and you're giving him space. आपने कुछ एलिगेशंस लगाए मुमता जी, you have to take a response. जवाब आपको मिलेगा, क्योंकि अगर आप एक तरफा एलिगेशंस लगाएंगे उसका जवाब भी सुनने के लिए रहिए ना तैयार। अपमान सहने नहीं यहाँ पर आया। बात रिपीट करूंगी, मोतीलाल नेहरू ने अपना सारी संपत्ति अंग्रेजों के जमाने में कमाई वकील होते हुए, जिसकी वजह से कैम्ब्रिज के दोनों द्वार पे रोज खड़ी होती थी कि न जाने जवाहरलाल नेहरू कौन से गेट से आए। जवाहरलाल नेहरू के कपड़े तक पेरिस जाते थे धुलने में, और उन्होंने अपनी संपत्ति का 1 रुपया भी देश के नाम नहीं किया। और दूसरी बात, यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी एक टायरेंट है, तो ये एक और बार इन्होंने तमाचा मारा है देश की जनता के ऊपर, जिन्होंने उनको वोट देके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। और जो राहुल गांधी, ओके वेरी क्विकली मिस्टर मुंगटा, आई हैव टू रैप अप। ये वोट चोरी नहीं हुई, जब देश की 24 करोड़ को वोट दिया है, हमको भी लोगों ने एलओपी बनाया था, लोगों ने। हम जो है आपके 405 की पिछली बार मजबूरी में बनाना पड़ गया था, उतने नंबर भी नहीं थे, उतने नंबर भी नहीं थे मुंगटा जी, प्लीज सच्चाई आप भी जानते हैं कि कितने नंबर थे, और एलओपी बनने के लिए किसी पार्टी से कितने नंबर चाहिए। 2 नंबर से भाजपा के, इतना अहंकार ठीक नहीं है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, यही मैं कह रही हूँ कि इतना अहंकार ठीक नहीं है, इसीलिए शायद कांग्रेस पार्टी को बता देना चाहिए था। आप 10वीं सीट पर राहुल गांधी को रख लीजिए, करने के पीछे की वजह क्या थी, और अगर ये पीछे बैठने की वजह थी तो फिर आप समझ जाइए अहंकार किसमें कितना है। थैंक यू वेरी मच राधिका खेड़ा एंड मिस्टर मुंगटा फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू। Moving on the